Berarti nanti mata shoro kemana? Baru sini kita saya. Ya, wah, sigur juga. Aja, bisa sah. Tadi kan teler sekarang. Ah. वही चलने की Dishi. Kau ni dah lagi ya. और सोकड़ी 15. ها تاسو راځه په نوم ځای هاي ها نو افیکټ نه تاسو بس کړلی شته نه سافر مګر نه دې مې استعمال کوم ها و نو شغل جوړ نه کی تاسو دا نه تاسو ما کوم کیلو ما دا له ولو یا نشته او کنه ابرار دی وسره بل څوک دی تاسو دې څنګه کنیکټ کړی څنګه ری کدی موبایل نه غټي لانجی دي یا کوته دا ودی نیکسټ کې وکړه ډیری بچ کوم آیفون تا ماته ویډیو ته راغی ما هم سره یو د غریبې ونی اجازه دومره استرالیا کې زمارو راځي استرالیا نه زمارو راغلی استرالیا نه به تاسو ما ویډیو زمارو راځي ته ما ویډیو شي الله ما ویډیو ګندا زمون کال لیټ غټېټ دی پوښتنه دا لازمي وکړه مونږ پاکستان کې دا ته پته ته ما ویډیو ما زمارو استرالیا راځي کنه خپل ټول سړي خبره پلان یې ګڼل یو ورته کنه تاسو نه پیل تا راوځه وای نه ما سره یو لینس کول ته ورغونه یا دا کوم وګورته راځه ته زو ملاو شي کنه روغني دغه لکه درته شو خو کنه دا کوم له بس کم کړه نو خدای کله کله دغه شی ولګي نو معمولی کې استفاده کوي ته دا کومه تراړه زو ګورم کنه ملاو شي ورو کړه ولی دا تاسو کوي درګه کله کله کوم څه دي نو لږه کله کې سامان ته څه ورته درې کسانه غوسه راغلي سیفي سیفي دا وای Esta es la joder de Burkharia, Lama. Strecta. Strecta, così, guida.
Şabasha. Ben de Raşit. Başa. Clocha. Bas devam.
चार्जिंग स्टॉप पेटी रगड़ देनो चार्जिंग स्टॉप करो चार्जिंग स्टॉप पेटी रगड़ो अक्का बॉलर उमेर हां دوره مکمل شلې 36 رن دي وکه د شان ټایګر یو کړي آوټ شوی دی آوټ شوی بیټسمن چې دی وحید آوټ شوی دی وکه په سټرایک باندې عشرت ته نان سټرایک باندې ابرار دی باولر دی عمر تعلق چې دا وګای سره دی चार रन او په دې بل باندې شکراله سکور 40 دریم اوور دی 40 رن دی وکه د شان ټایګر یو آوټ دی باولر دی عمر په سټرایک باندې شرط اجي سیب دی वन रन स्कोर 41
او دا یو آسان کې چې دغه باودر په خپل میس کا د ابرار یو رنز راغی سکور 42 یو آسانه موقع دی وکي ابرار ته ملاو شله ډیر ایزی چانس هو بس لګا تادی وړو مې 4 रन अजी से बेटा चुकराला स्कोर 46 रन شله دی وخت دریم اور جاری دی 46 رن دی دیشان ټایګرز اور مکمل شله درې اور کې 46 یو اوټ وای دا اوټ شوی دی کې چې اوټ شوی دی کې چې دغه ابي جان ټیکړ باولر شیراز اور نشه आउट पे 47 फेल रहे 47 से वाइड बॉल चार रन चार दार आला राजू से बेड़ा स्कोर 52 रन دی وخت څلورم اور جاری دی 52 رن دی دیشان ټایګر دا ویډیو شیر کړئ مرګورو سره پیج زموږ فالو کړئ دا میچ دی 15 اور پر مشتمل دی توفیل دی باولر بیټسمن دی شتا جی मिस फील्डिंग 4 रन आला په دوه بال باندې بچ کې رااله मिस फील्डिंग شیراز طرف نه स्कोर 56
بدرې بالو باندې 3 چوکې راغلي دا 3 چوکه راغله په دې اوور کې 60 رنز له دې وخت کې 60 رنز له په 3 بالو باندې 3 چوکې راغلي 60 जबरदस्त फील्डिंग अभी जंग की तरफ ना जबरदस्त फील्डिंग यो रन रहा यकीनन चुका हुआ ये जबरदस्त फील्डिंग स्कोर 61 स्कोर 61 जबरदस्त बाल ډېر ښه بال تو ویل اور مکمل شه 4 اور مکمل شه स्कोर 61 4 ओवर मुकम्मल से स्कोर दे 61 دا मैच दे 15 ओवर باندې مشتمل دی وحید اورشوی دی ابرار او اجي سیب چې دی هغه په کریز باندې موجود دی باولر چې دی دا باولر شفیع الله دی شفیق وګای ولا So hey, that batsman हेलमेट रखो दोनों तजुर्बा समझना लास्ट से लगा हमारा शॉट 4 रन जबरदस्त शॉट इब्राहिम दे बेटे था छुकर आला तो गिलर आ रही कितने लगी हाँ Tabassinga Mani 4 रन बैक टू बैक बोल रहा है 4 रन डाले यार इस्लामुद्दीन ने सुपर शॉट रखा है हाँ हाय हाय
دغه سره کېنه او سړی زموږ لږ کار دی. और जबरदस्त शॉट 6 रन के लिए इब्रार द बेटा दा चिकरा ला पदिया ओवर की 2 चुकी है चिकरा 4 3 चुकी है सॉरी 3 ता 4 रन जी बैक टू बैक. स्कोर 74. कैच आउट इब्रार कैच आउट जबरदस्त कैच है गोहरों को 2 विकेट लाड़ 75 बांधे. बैट्समैन सुहेल अख्तर. No me da, da, Hello. 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 Mic testing 1 2 3.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम एवरीबॉडी एंड वेलकम एवरीबॉडी। बुलंद बाला सरसब्ज शादाब पहाड़ों की दामन में वाक़िया ग्रीन शगई खुजाबांडा का खूबसूरत ग्राउंड, जहां तक मेरी आवाज सुनी जाती है, सब सुनने वालों को दिल के अता गहराइयों से खुश आमदीद, वेलकम, हरकत आवा पखेर राले। आज का मुकाबला मैदान सजा है दो बड़ी टीमों के दरमियान, पाक शाहीन वर्सेस देशान टाइगर। टॉस जीतने के बाद देशान टाइगर के कैप्टन ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है आज के इस मुकाबले में, और अब तक 5 पाक शाहीन खुजाबांडा के कैप्टन ने आज इस मुकाबले में टॉस जीता था और देशान टाइगर की टीम को पहले खेलने की दावत दी। उनका फैसला अभी तक उनके लिए सुरमन साबित नहीं हुआ है, क्योंकि बड़ी अंदाज स्टार्ट ली है देशान टाइगर की टीम ने। अब तक कुल मिला के 5.4 गेंदों के बाद 77 रन बनाए हैं और उनके 2 मैन बैट्समैन वापस जा चुके हैं, लेकिन रनों की गति को कम नहीं किया है और अब क्रीज को संभाल चुके हैं लाहौर कलंदर के साबिक कप्तान और मौजूदा टीम प्लेयर और देशान टाइगर की नुमाइंदगी करने वाले सुहेल अख्तर, और उनका साथ निभा रहे हैं इशरत अहमद, नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन। और अब की बार लेग बिफोर की अपील, गेंद को स्वीप करने गए थे, पूरी तरह जज नहीं कर पाए गेंद को सुहेल अख्तर। गेंद उनके पैड से टकराने के बाद खड़ी भी रही। एक गेंद बाकी है सुहेल की। हेलो, तो आज के मुकाबले में पाक शाहीन खुजाबांडा के कैप्टन अयासुद्दीन ने टॉस जीता था और पहले खेलने की दावत की है। और इससे पहले 2 लगातार चौके इशरत अहमद के बल्ले से। हेलो हेलो, इसका 7वां ओवर जारी है। 7वें ओवर के लिए शफीक आए हैं। शफीक के 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके इशरत अहमद के बल्ले से। शफीक स्वर में अगली बार, और इस बार एक और खराब गेंद, फायदा जरूर उठा पाए हैं इशरत अहमद और एक और चौका, और इसी चौके के साथ इशरत अहमद के 50 रन मुकम्मल। आज के इस मुकाबले में बड़ी उम्दा आगाज की है देशान टाइगर की टीम ने, और इशरत अहमद के जारिहाना बल्लेबाजी, 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके रनों की गति को बड़ी उम्दगी से आगे ले जा रहे हैं, और उनका साथ निभा रहे हैं सुहेल अख्तर।
पाक शाहीन कुजाबांडा के कैप्टन बॉलर के साथ सलाह मशवरा करने में मसरूफ है कि किस तरह छुटकारा हासिल करना है इशरत अहमद से, क्योंकि इशरत अहमद आज डट कर खड़े हैं और खुलकर खेलते हैं। बड़ी उम्दा स्ट्रोक्स अभी तक देखने को मिले हैं उनके बल्ले से। 2 विकेटें जरूर गंवाई है देशान टाइगर की टीम ने। पहले आउट होने वाले बैट्समैन वहीद और दूसरे और आखिरी आउट होने वाले बैट्समैन इब्रार वापस जा चुके हैं, लेकिन सामीन आज का ये मैच थोड़ी सी ताखीर का शिकार रहा बारिश की वजह से, तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने फैसला किया है कि आज का ये मुकाबला 15 ओवर का होगा। तो 15 ओवर के मुकाबले में टॉस जीतने के बाद देशान टाइगर को खेलने की दावत दी है पाक शाहीन कुजाबांडा के कैप्टन अयासुद्दीन ने, और अभी तक उनका फैसला सूदमंद साबित नहीं हुआ है पाक शाहीन कुजाबांडा के लिए। 7 ओवर के बाद यानी 42 गेंदों में 9 रन बना लिए हैं देशान टाइगर की टीम ने। आज के इस मुकाबले में बड़ी उम्दा स्टार्ट शुरू के ओवर से वहीद के बल्ले से जिस तरह से स्ट्रोक देखने को मिले, और बाद में इब्रार ने जिस तरह ग्राउंड के चारों तरफ स्ट्रोक लगाए और उनका भरपूर साथ निभाया इशरत अहमद ने, जो कि अभी भी क्रीज पर मौजूद है। 50+ रन बना चुके हैं और अब उनका साथ निभा रहे हैं और अपने इस टारगेट को आगे की तरफ ले जा रहे हैं सोहेल अख्तर, जो कि स्ट्राइकर बैट्समैन है। सामना करेंगे पहली गेंद फ्लाइटेड डिलीवरी जिसको हल्के से पुश किया पॉइंट की जानिब। वहां फील्डर मौजूद थे, रन्स बनाने के लिए दौड़ पड़े थे, लेकिन वापस जाने का इशारा किया उनको इशरत अहमद ने। स्कोर बदस्तूर न हुए, यानी इसका ये 8वां ओवर जारी है। 15 ओवर का आज का ये मुकाबला। बारिश की वजह से ये मैच आज मुकर्ररा वक्त से काफी लेट शुरू हो चुकी है, इसी वजह से आज का ये मुकाबला 15 ओवर पर मुश्तमिल है और इसी वजह से कोशिश कर रहे हैं देशान टाइगर्स के बड़े से बड़ा टारगेट सेट करें। और अब की बार गेंद हवा में है, फील्डर ने आने की कोशिश में, लेकिन गेंद उनके पहुंच से दूर और इसी असना रन्स बनाने का मौका था, स्ट्राइक को रोटेट करने का मौका था सोहेल अख्तर के पास, जो कि कामयाब भी रहे। स्ट्राइक को रोटेट किया है इशरत अहमद के लिए। कुजाबांडा सुपर लीग सीजन फर्स्ट, इससे पहले दोनों टीमें अपने पोल में एक मैच खेल चुकी है और दोनों टीमों ने पहली मैचेस में कामयाबी हासिल की है। आज दोनों टीमों का दूसरा मुकाबला है। देखते हैं कि आज कौन सी टीम। और अब की बार हल्की सी उठी गेंद जिसको कट करने गए थे पॉइंट और गली के बीच में से इशरत अहमद समझ नहीं पाए और गेंद जाके फर्नीचर से टकराई, तो आज के इस मुकाबले में ही 3रा नुकसान उठाना पड़ा। डेंजर मैन इशरत अहमद को बलाखिर पवेलियन चलता किया। जिस विकेट की तलाश थी पाक शाहीन कुजाबांडा की टीम को, बलाखिर वही शिकार उनके हाथ लगी। इशरत अहमद बड़ी उम्दा इनिंग्स खेलने के बाद आउट होकर वापस जा चुके हैं और इसी विकेट की तलाश थी पाक शाहीन कुजाबांडा की टीम को और कामयाब भी रहे, ताकि वो समझते थे कि मैच में वापस आने की यही एक सूरत है कि हम इशरत को पवेलियन चलता करें, और वो कामयाब भी रहे। 91 के स्कोर पर ये 3रा दचका लगा है। इशरत अहमद 51 रन बनाने के बाद बॉल्ड आउट हुए हैं और अजीज का शिकार बने हैं। हेलो, हेलो,
हेलो हेलो, टेस्टिंग 1 2 3, हेलो हेलो। और इस बार एक और उम्दा गेंद, यकीनन बड़ी उम्दा वापसी की है अजीज ने। इशरत अहमद की विकेट इस ओवर में लेने में कामयाब रहे तो 8वां ओवर अपने खिताम को पहुंचा। इनिंग्स का पहला कामयाब ओवर खत्म आज के इस मुकाबले में, जिसमें उस अजीज ने सिर्फ 2 रन देकर इशरत अहमद जैसे खिलाड़ी को पवेलियन चलता किया। और अब क्रीज पर मौजूद है दोनों आउटसाइडर खिलाड़ी अमजद वकास और सुहेल अख्तर। देखते हैं कि ये दोनों खिलाड़ी आने वाले ओवर्स में अपने टारगेट को कहां तक ले जाते हैं। बड़ी उम्दा स्टार्ट आज के इस मुकाबले में फराहम की थी वहीद और इशरत अहमद ने। वहीद अपना विकेट जल गंवाए थे, लेकिन वहीद का आउट होने के बाद 1 डाउन की पोजीशन पर जिस तरह बल्लेबाजी देखने को मिली इब्रार के बल्ले से, तो उन्हीं की बदौलत एक अच्छा स्टार्ट मिला। मैंडेटली पावर प्ले के 5 ओवर में 77 रन बनाए थे आज देशांत टाइगर की टीम ने, और उसी रन रेट को कंटिन्यू रखते हुए सुहेल अख्तर और अमजद वकास इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। आउटसाइडर किला अजीज ने 2 ओवर में 5 रन खर्च किए हैं और 1 विकेट भी दिलाई है अपनी टीम को। अजीज आज बड़े कामयाब बॉलर रहे आज के मुकाबले में। अजीज पहले कामयाब बॉलर थे आज के मुकाबले के, और अब की बार गेंदबाजी में तब्दीली की गई है। आबिद को लगा लिया है। आबिद बाएं हाथ के बैट्समैन अमजद वकास के लिए पहली गेंद जिसको हल्के से पुश किया, लेग स्लिप की जानिब वहां इकराम मौजूद थे, लेकिन रन बनाने से नहीं रोक पाए। और इसी 1 रन से अमजद वकास ने स्ट्राइक को रोटेट किया है सुहेल अख्तर के लिए। सुहेल अख्तर पहले मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच 1 मैन सोल्जर का किरदार निभाया था कुजाबांडा सुपर लीग के ओपनिंग मैच में देशांत टाइगर के बैटर सुहेल अख्तर ने। देखते हैं कि आज के इस मुकाबले में क्या कर पाते हैं। फील्ड प्लेसमेंट का जायजा ले रहे हैं, फील्डिंग में तब्दीली करवाना चाहते हैं अयासुद्दीन। एक खिलाड़ी को पॉइंट की पोजीशन पर भेजा है सुहेल अख्तर के लिए। और आज के इस मुकाबले के मेहमानी खुसूसी जो कि पंडाल पहुंच चुके हैं, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आबिद। और इस बार एक और अच्छी गेंद, एक और उम्दा गेंद। आज बारिश के बाद विकेट थोड़ी स्लो रही है। गेंदों को आसानी से जज करना बैट्समैन के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी उम्दा स्टार्ट आज के इस मुकाबले में। आबिद इस ओवर में 23वीं बार गेंद करेंगे सुहेल अख्तर को, और अब की बार खूबसूरत तरीके से ड्राइव किया है इस गेंद को पॉइंट और गली के बीच में से। बड़ी उम्दा स्ट्रोक और गेंद जमीनी रास्ते से बाउंड्री पार। एक और चौका। तो आज के हमारे इस मैच के मेहमानानी ग्रामी निसार मंजक, जिनका ताल्लुक पिशोड़ा से है, और उनके साथ मेहमानानी ग्रामी के पैनल में शामिल इजाज अहमद पाशा, दोनों मेहमान ग्राउंड पहुंच चुके हैं। हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। आबिद, और अब की बार क्या खूबसूरत शॉट, एक टप्पा ही सही, फील्डर सिर्फ तमाशाई बनकर देख सकते थे इस गेंद को। सुहेल अख्तर ऐसे ही जारहाना स्ट्रोक्स खेलने के लिए जाने जाते हैं। पिछले मुकाबले का भी मैंने जिक्र किया, पिछले मुकाबले में सुहेल अख्तर ने 64 रन की इनिंग्स खेली थी, और इसी चौके के साथ देशांत टाइगर के 100 रन मुकम्मल। आज के इस मुकाबले में सुहेल अख्तर के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा चौका, लगातार 2 चौके। पहले 3 गेंदें बड़ी शानदार रही, पहले 2 गेंदें डॉट गेंदें करवाने में, 1 गेंद पर सिंगल और 1 गेंद पर डॉट, लेकिन लास्ट के 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके। क्या कहेंगे आरिफ?
और अब की बार अमजद वकास, बाएं हाथ के बैट्समैन आबिद। अमजद वकास के लिए खराब गेंद, लूज गेंद जिसका भरपूर लाभ उठाया। बड़ी उम्दा स्ट्रोक, खाली जगह को इस बार पुर किया है अमजद वकास ने और गेंद एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन से बाहर। और यहां पर अमजद वकास अंपायर से कुछ डिमांड कर रहे हैं। नौ ओवर के बाद और कुल स्कोर 106 यानी 54 गेंदों में 106 रन बना लिए हैं देशान टाइगर की टीम ने। और उनके 3 मेन बैट्समैन आउट होकर वापस जा चुके हैं। यहां पर फील्ड में कुछ इतराजात है बैट्समैन अमजद वकास को, जो कि डिमांड कर रहे हैं अंपायर से। देखते हैं कि अंपायर क्या डिसीजन लेते हैं। 9 ओवर के बाद कुल स्कोर 106। इसके 10वें ओवर के लिए तुफैल को एक बार फिर आजमाने का फैसला किया है सोहेल अख्तर के सामने। फील्डिंग में कुछ तब्दीली सोहेल अख्तर के लिए तुफैल करवाना चाहते हैं। अपने बॉलिंग स्टार्ट पर बिल्कुल तैयार है और उनका सामना होगा लाहौर कलंदर के साबिक कप्तान और देशान टाइगर के मिडल ऑर्डर बैटर सोहेल अख्तर से। और अब की बार स्लो वन जिसको हल्के से पुश किया स्क्वायर लेग की जानिब, वहां फील्डर मौजूद। शॉर्ट स्क्वायर लेग से फील्डर ने दौड़ के गेंद को रोका, लेकिन रन्स बनाने से नहीं रोक पाए सोहेल अख्तर को। बड़ी उम्दा क्रिकेट सोहेल अख्तर और अमजद वकास की जानिब से बार बार स्ट्राइक को रोटेट करते हैं और जहां भी उनको गलत गेंद मिलती है तो उनको बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाते हैं। दोनों आउटसाइडर खिलाड़ी बड़ी उम्दा क्रिकेट खेल रहे हैं। तुफैल अब की बार बाएं हाथ के बैट्समैन अमजद वकास के लिए, और इस बार जोरदार हिट लगाने की कोशिश। गेंद थोड़ी सी ऊंची रही, पूरी तरह गेंद को जज नहीं कर पाए। गेंद गई विकेट कीपर के पास। डॉट गेंद, स्कोर बदस्तूर 107। इनिंग्स का ये 10वां ओवर जारी है और आसमान एक बार फिर गरजना शुरू हो चुका है और हल्की सी बारिश ने ग्राउंड का रुख किया है। आज पहले से भी मैच बारिश की वजह से ताखीर का शिकार रही, तो इसी वजह से इस मैच को 15 ओवर तक महदूद रखा, लेकिन फिर से बारिश के आने की खतरा। और देखते हैं कि कब बारिश ग्राउंड का रुख करती है। मुकाबला भी जारी है। तो फिर अब की बात करेंगे सोहेल अख्तर का। सोहेल अख्तर तुफैल अंपायर के पास से गुजरे और इस बार क्या खूबसूरत शॉट। फिर से वही जगह को टारगेट किया, पॉइंट और गली के बीच में से। वो समझते हैं कि यहां पर गेम मौजूद है। बड़ी उम्दा क्रिकेट, लगातार 3 चौके सेम पोजीशन पर देखने को मिली है सोहेल अख्तर की जानिब से। तुफैल के सामने सोहेल अख्तर जैसे बैटर, जो कि पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच भी थे, आज भी बड़ी उम्मीदी से अपने स्कोर को आगे ले जा रहे हैं। इस वक्त दोनों आउटसाइडर खिलाड़ी, दोनों का ताल्लुक हरीपुर से है। सोहेल अख्तर और अमजद वकास पाक शाही न्यूजीलैंड के खिलाफ आज देशान टाइगर की टीम ने बड़ी उम्दा स्टार्ट ली है इस मुकाबले में। शुरू से आते ही अटैकिंग में कामयाब रहे वहीद अपना विकेट जल गवाए थे, लेकिन इब्रार ने जिस तरह साथ निभाया आज के इस मैच में इशरत अहमद का, और इशरत अहमद ने भी आज ग्राउंड के चारों तरफ बड़ी उम्दा स्ट्रोक खेली, उठाते हुए उसी का फायदा उठाते हुए बड़ी उम्दा क्रिकेट खेल रहे हैं दोनों खिलाड़ी। जहां पर उनको गेम मिलती है एक और उम्दा स्ट्रोक।
एक और खूबसूरत शॉट, बड़ी उम्दा क्रिकेट, जहां पर सोहेल अख्तर को गैप मिलती है, बड़ी शॉट देखने को मिलती है, यहां पर अमजद वकास को तो ओ भी जाने नहीं देते, खराब गेंद को विकेट कीपर के पास जानिब से। और ये और बेहतरीन क्रिकेट है, ये वही एडवांटेज है जो शुरू में बाहम की थी वहीद और इशरत अहमद ने अपनी टीम को, क्योंकि वो समझते थे कि आज का मुकाबला 15-15 ओवर का है। आज शुरू में बारिश थी तो इसी वजह से मैच थोड़ा डिले हो चुका था, और बाद में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने इस मैच को 15 ओवर तक महदूद रखा। तो वो समझते थे कि 15 ओवर का शॉर्ट मैच है, तो ज्यादा से ज्यादा टारगेट सेट करना है, शुरू से अटैक करना है, और शुरू से अटैक करने में कामयाब रही देशान टाइगर की टीम। पाक शाहीन गुजबांडा के बॉलर्स पर 10 ओवर के बाद 117 कुल स्कोर है, 3 विकेटों के नुकसान पर मजीद मौजूद है, लेकिन बारिश ने एक बार फिर ग्राउंड का रुख किया है। देखते हैं कि ये मैच कहां तक जाएगी। अजीज की पहली गेंद, फ्लाइटेड डिलीवरी, जिसको पुल करने गए थे सोहेल अख्तर, पूरी तरह टाइम नहीं कर पाए, और बारिश ने एक बार फिर ग्राउंड का रुख किया है। देखते हैं कि अंपायर्स मैच को रुकवाते हैं या कंटिन्यू रखते हैं। अजीज अमजद वकास के लिए पुल करने गए थे इस गेंद को, जज नहीं कर पाए गेंद की लाइन को, बेट हुए गेंद गई विकेट कीपर के पास, डॉट गेंद, स्कोर बदस्तूर 117। अजीज बड़ी उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं, आज के इस मुकाबले के सबसे कामयाब बॉलर है, और अब की बार पढ़ने के बाद लेग स्टंप की जानिब मूवी, गेंद वाइड का सिग्नल दिया अंपायर ने। एक्स्ट्रा की सूरत में एक और रन, इसे 1 रन से कुल स्कोर 118, 118 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट, यानी इसका 11वां ओवर जारी। अजीज हल्के से खत्मों के साथ, और अब की बार खाली जगह में खेले हैं इस गेंद को, मेल्डॉन के फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाएंगे, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन, और इसी चौके के साथ स्कोर में तेजी से 4 रनों का इजाफा, कुल स्कोर 122, 122 फदला सब विकेट, 10 पॉइंट। 11वें ओवर का गेम जारी है। अजीज आज के कामयाब बॉलर है जिन्होंने काफी कम रन खर्च किए हैं इस मुकाबले में, और अब की बार एक और अच्छी गेंद, लेकिन वाइड का सिग्नल अंपायर अनवर ज़ैब की जानिब से। इस वाइड की सूरत में 1 रन और आता हुआ, इसे 1 रन से कुल स्कोर 123, 123 फदला सब 3 विकेट, और इस बार अंदर आती हुई गेंद, जिसको स्ट्रेट खेले, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोका, अजीज ने रन बनाने का मौका मुयसर ना सका सोहेल अख्तर और अमजद वकास को, डॉट गेंद, स्कोर बदस्तूर 123, और अब की बार जोरदार हिट लगाने के लिए गए थे, लेकिन गेंद पड़ने के बाद लेग स्टंप से बाहर थी, वाइड का सिग्नल दिया अंपायर ने। एक्स्ट्रा का एक और रन, कुल स्कोर 124, फिर इसका 11वां ओवर जारी। 15 ओवर का आज का ये मुकाबला, जिसमें टॉस जीतने के बाद देशान टाइगर की टीम को पहले खेलने की दावत दी थी पाक शाहीन गुजबांडा के कैप्टन ने, और इस बार खाली जगह में खेले हैं, लेकिन हाथ से झटकती हुई गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाएगी, और इसी असना दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं दोनों खिलाड़ी, और दूसरा रन बनाने में भी कामयाब रहे। बड़ी उम्दा रनिंग बिटवीन द विकेट, सोहेल अख्तर और अमजद वकास के दरमियान बड़ी उम्दा क्रिकेट, जहां रन बटोरने हो वहीं पर मौका नहीं जाने देते हाथ से सोहेल अख्तर और अमजद वकास, चाहे वो सिंगल की सूरत में हो, चाहे डबल हो, चाहे चौका हो, चाहे छक्का हो, लेकिन रन बटोरने की बड़ी उम्दा कोशिश जारी है, और अभी तक का उनका पल्ला भी भारी है। तो 11वां ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा। टॉस जीतने के बाद पाक शाहीन के कैप्टन की दावत पर पहले खेलते हुए 11 ओवर के बाद देशान टाइगर का स्कोर 127,
127 66 गेंदों के बाद 127 126 126 नहीं बेखजे के रास्ते। हाँ आज शुरू से भी बारिश थी, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने मैच को मुख्तसर किया, 15 ओवर तक महदूद रखा और 15 ओवर में अब तक 11 ओवर्स का खेल हो चुका है पहली बारी का। और टॉस जीतने के बाद देशान टाइगर की टीम पाक शाहीन खुजाबांडा के कैप्टन की दावत पर खेल रही है और अभी तक वो कामयाब भी है। गोवर देखे लगा दे तो सुबह हेलो शफीक सॉरी गौहर को आज के इस मुकाबले में पहली बार आजमाने का फैसला किया है पाक शाहीन खुजाबांडा के कैप्टन ने। देखते हैं कि वो कप्तान की उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं या नहीं। सोहेल अख्तर के लिए पहली गेंद जिसको हल्के से पुश किया, वहां पर फील्डर मौजूद थे लेकिन रन्स बनाने से नहीं रोक पाए, स्ट्राइक को रोटेट करने से नहीं रोक पाए सोहेल अख्तर को, जिन्होंने अपने साथी खिलाड़ी लेफ्ट हैंडर अमजद वकास के लिए स्ट्राइक को रोटेट किया है और अभी अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे भाई जैसे दोस्त सीएफ के फयाज ताकोट ने। तो हम उनको खुशामदीद कहते हैं कमेंट्री बूथ आमद पर कि उन्होंने अपने गिने चुने और डके चुके मसरूफियात में से वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ लाए और अब की बार बड़ी उम्दा स्ट्रोक लेकिन गेंद को रोकने में कामयाब रहे। बड़ी उम्दा फील्डिंग इकराम की जानिब से, यकीनन अपनी टीम के लिए 2 रन बचा लिए हैं लेकिन फिर भी 2 रन से नहीं रोक पाए अमजद वकास को। बड़ी उम्दा रनिंग दोनों खिलाड़ियों के दरमियान विकेटों के बीच में दौड़ लगा के इस 2 रन से कुल स्कोर 130। गौहर इस मुकाबले में पहली ओवर के लिए आए हैं और अब की बार गेंद हवाई रास्ते से काफी देर बाद हवाई स्ट्रोक देखने को मिली और वो भी लेफ्ट हैंडर बैट्समैन अमजद वकास के बल्ले से, जो बड़ी उम्दा क्रिकेट खेल रहे हैं और अपने साथी खिलाड़ी सोहेल अख्तर का बखूबी साथ निभाया है आज के इस मुकाबले में। इशरत अहमद के आउट होने के बाद खुलकर खेला है और कामयाब भी रहे हैं, चाहे वो स्पिन बॉलिंग हो चाहे फास्ट बॉलिंग। बड़ी उम्दा क्रिकेट दोनों खिलाड़ियों के दरमियान और बड़ी अच्छी साझेदारी भी जारी है और एक अच्छे तरीके से अपने स्कोर को आगे ले जा रहे हैं। और अब की बार फिर से बड़ी उम्दा स्ट्रोक, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है, मैदान की जानिब खेलने में कामयाब हुए थे इस गेंद को। स्ट्राइक को रोटेट करने का मौका था, फिर से रोटेट किया है स्ट्राइक को सोहेल अख्तर के लिए। फयाज आज के इस मुकाबले में टॉस खुजाबांडा पाक शाहीन के कैप्टन ने जीता था और उन्होंने पहले खेलने की दावत दी है देशान टाइगर की टीम को और अभी तक इसके 12वें ओवर तक 137 रन बनाने में उनकी टीम कामयाब हो गई है। 15-15 ओवर का मैच है, तो क्या कहेंगे फयाज? शुक्रिया अबकर भाई। यकीनन टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला दुरुस्त साबित होना चाहिए था, चूंकि बड़ी उम्दा बल्लेबाजी की वहां पर इशरत हुसैन और वहीद ने उसका भरपूर फायदा उठाते हुए सोहेल अख्तर और अमजद सईद। इस बार बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक अपर कट इसको कहा जा सकता है और बहुत ही शानदार 1 बाउंस 4 रनों के लिए सोहेल अख्तर द लेजेंड क्रिकेटर ऑफ लाहौर कलंदर यकीनन अपना लोहा मनवाते हुए जानते हैं कि यहाँ से रन रेट जितना तेजी के साथ आगे बढ़ेगा 15-15 ओवर्स पर मुश्तमिल। तो 12वें ओवर के बाद स्कोर है 141 रन। अबूबकर भाई मैं भी समझता हूं कि जो भी कैप्टन होता है यहाँ पे आज टॉस जीतकर पहले बॉलिंग के लिए जाता, क्योंकि जब टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो हर बॉल के साथ चेंज होती हैं तो हर एक कैप्टन चेजिंग पे जाता है और कोशिश उसकी यही रहती है कि रन रेट को फॉलो किया जाए। और लेकिन अब यहाँ से थोड़ी सी मुश्किलें जो है वो ज्यादा हो चुकी है पाक शाहीन के लिए और समझ तक नहीं पा रहे गयासुद्दीन शाह के कौन से गेंदबाज के पीछे जाए। वो एक हमेशा से एक बात सुनने को मिलती थी कि जब सहवाग बल्लेबाजी करते थे तो हर एक गेंदबाज जो है वो चुपता रहता था कैप्टन से। तो आज ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि सोहेल अख्तर और अमजद वकास दोनों जो कि गेस्ट प्लेयर हैं हरिपुर से
दिशान टाइगर के लिए पहला मुकाबला सुपर ओवर में जीते थे MHS कुजाबांडा की टीम से। उनके कैप्टन मेरे बिल्कुल बगल में बैठे हुए हैं और यकीनन वो जानते हैं जिन्होंने सिर्फ टूर्नामेंट में कमबैक किया है, उन्होंने शानदार कमबैक किया था। दूसरा मुकाबला अपना 160 के जवाब में 85 रन पे आउट किया था बदकूल फाल्कन की टीम को। फील्डिंग में तब्दीली करते हुए उमेर को वापस बुला लिया है गेंदबाजी के लिए। तो यहां से अंपायर्स ने भी वार्न कर दिया है, एक फील्डर को अंदर लाना होगा, यानी अब 4 फील्डर बाहर सर्कल के बाहर होंगे 5 के बजाय। ये एक और नेगेटिव पॉइंट है यहां पर पाक शाहीन के लिए। चौथे ओवर के लिए उमेर को गेंदबाजी के लिए बुला लिया है लेजेंड सोहेल अख्तर नाम स्ट्राइक एंड पर मौजूद, जबकि उनके साथ निभाते हुए अमजद वकास सामना करेंगे उमेर का ओवर द स्टंप। इस बार गेंद की खेलने में कामयाब रहे, कवर की जानिब एक रन बना और गेंद के पीछे हैं इकराम। जब तक वो गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल करने में कामयाब रहे दोनों बल्लेबाज। इन 2 रनों की वजह से स्कोर में 2 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 143 के मजमूई पे जा पहुंचा है। इशरत हुसैन ने आज 51 रन की बड़ी शानदार इनिंग खेली और अजीज के हाथों क्लीन बोल्ड होकर वापस जा चुके हैं। और अब उनके बाद अमजद वकास और सोहेल अख्तर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए अब की बार कट किया है, बहुत ही खूबसूरती और चालाकी के साथ बॉलर की पेस का इस्तेमाल किया। विकेट कीपर और पहले स्लिप में थोड़ा सा वाइड खड़े शफीक के बीच में से गेंद निकलती हुई 4 रनों के लिए कमाल का स्ट्रोक खेलने में कामयाब रहे यहाँ पर अमजद वकास और इस चौके की मदद से स्कोर में तेजी के साथ इजाफा 147 147 फॉर द नॉलेज ऑफ 3। यकीनन बड़ी ही शानदार बल्लेबाजी, जानते थे कि वका उसेर तेज गेंदबाज हैं, बल्ले का फेस दिखाया और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई उमेर एक बार फिर से तेज होते हुए एक बार फिर से कट करने में कामयाब रहे, लेकिन अब की बार फील्डर के हाथ में रन्स मिलेगा एक दोनों बल्लेबाजों को और इस 1 रन की मदद से देशान टाइगर के स्कोर में इजाफा, एक मजीद रन मिलता हुआ 148 3 विकेट के नुकसान पे। और अब सामना करेंगे साबिक कप्तान लाहौर कलंदर के सोहेल अख्तर। बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया में, PSL में पहली बार लाहौर कलंदर की टीम को फाइनल खिलाने वाले नौजवान क्रिकेटर सोहेल अख्तर ही थे, जो कि आज एज अ लेजेंड यहाँ पर एज अ गेस्ट प्लेयर यहाँ पर हमारे दरमियान मौजूद इस वक्त विकेट के ऊपर जमे हुए हैं। और यकीनन पिछले मुकाबले की बात की जाए तो वो सोहेल अख्तर ही थे जिन्होंने अपनी टीम को वो मुकाबला सुपर ओवर में जिताया था। 61 रन की बड़ी ही शानदार इनिंग खेली थी जिसमें 5 बुलंदोबाला छक्के शामिल थे। और आज आई थिंक अबू बकर भाई उनके बल्ले से चक्का देखने को नहीं मिला और आने वाला है कोई बड़ा शॉट, देखना पड़ेगा। उससे गेंद करेंगे सोहेल अख्तर को, ओ खेलने जरूर गए थे, थोड़ी सी गेंद पीछे लगने के बाद रुक के आई है और सोहेल अख्तर आई थिंक पेन फील करते हुए आज चूंकि बारिश का मौसम है श्रीलंका पहले किले की याद दिलाते हुए, क्योंकि यकीनन कभी बारिश रुक जाती है। और आसिफ नवाज जो कि अल सादात के ऑलराउंडर क्रिकेटर वाइस कैप्टन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ भी कुछ बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, सोहेल अख्तर द लेजेंड ऑफ लाहौर कलंदर, द लेजेंड ऑफ हरीपुर, द लेजेंड ऑफ KSL स्ट्राइक लेंगे उससे एक बार फिर से तेज होते हुए और फ्लिक आफ्टर रेस फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश में, लेकिन गेंद उनसे आगे गिरने और इसके साथ ही दौड़ते हुए 2 रन बनाने में कामयाब रहे दोनों बल्लेबाज सोहेल अख्तर और अमजद वकास। फ्लिक के लिए जरूर गए थे, फिर से गेंद थोड़ी सी रुक के आई अबू बकर भाई, जिसकी वजह से पूरी तरह फ्लिक करने में कामयाब जरूर हुए, टाइम नहीं दे पाए बल्ले और गेंद को उस तरह का जिस तरह खेलना चाहते थे जरूर कामयाबी मिली, लेकिन पावर जो देना चाहते थे बॉल को वो नहीं दे पाए। और इसके साथ ही 150 रन मुकम्मल होते हुए देशान टाइगर के 4वें ओवर का खेल जारी, इस ओवर की एक और गेंद के साथ और इसके बाद मिड विकेट और डीप फाइन लेग के बीच में से खेलने में कामयाब, बड़ी शानदार फील्डिंग का मुजाहिरा वहां पर इकराम की जानिब से। यकीनन 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए और इन 2 रनों की मदद से देशान टाइगर के स्कोर में 2 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 152 3 विकेट के नुकसान पे। आज टॉस जीतकर पहले खुद बल्लेबाजी कर बॉल गेंदबाजी का फैसला किया पाक शाहीन की कैप्टन इकरामुल्लाह ने और अब तक उनकी टीम 14 ओवर में 152 रन
देने में जरूर कामयाब रही। बड़ी उम्दा बल्लेबाजी सुहेल अख्तर और अमजद वकास, दोनों लेजेंड क्रिकेटर फ्रॉम हरीपुर। 13 और आज चूंकि मैच देर से शुरू हुआ था उसी वजह से 15 ओवर्स पर मुश्तमिल ये मैच 152 13 सॉरी 13 ओवर्स के बाद 152। इस इनिंग के 2 ओवर्स अभी भी बाकी हैं। इस इनिंग के 2 ओवर अभी भी बाकी हैं। सॉरी टू से थोड़ी सी गलती हुई हमसे। तो बैट्समैन को एक बार फिर अनाउंस करता चलूं कि 13 ओवर्स हुए हैं, 12 गेंदों का खेल बाकी है। और अब मैं देख रहा हूं कि लेग स्पिनर शफीक को गेंदबाजी सौंपी है। देखना पड़ेगा वो क्या करते हैं। 152 13 ओवर में लगभग 10:30 की 11 की औसत, तकरीबन 11 से भी बढ़कर है, 12 के करीब की औसत से रन बनाते हुए यहाँ पे सुहेल अख्तर और अमजद वकास। शफीक बड़ी अच्छी गेंद, बहुत ही धीमी डालने में कामयाब रहे इस बार। शफीक जानते हैं कि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज अमजद वकास बड़े शॉट्स के लिए जा रहे हैं। 11 गेंदों का खेल बाकी। ओवर द स्टंप एक बार फिर से, अब की बार तेज गेंद हो जाएगी। अब इस गेंद के नीचे आने की कोशिश में, लेकिन उनसे एक टप्पा आगे खाती हुई गेंद उनके हाथ में गई। रन बनाने का मौका था एक, और अब सामना करना होगा द लेजेंड सुहेल अख्तर का शफीक को। 153 13.2 गेंदों का खेल इस वक्त हो चुका है। तेज गेंद डाली थी, पहली बहुत धीमी डाल गए थे और दूसरी काफी तेज, जिसका फायदा मिला वहां पर अमजद वकास को उनका बल्ला। और आज इकराम को गेंदबाजी के ऊपर नहीं देखा। अमजद भाई क्या समझते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लानिंग उनके दरमियान माइंड में जरूर थी। और इस बार फिर से थोड़ी सी धीमी गेंद, उसे खेलने में जरूर कामयाब रहे मिड विकेट की जानिब। और वहां पर खड़े थे इकराम जो कि इस टीम को लीड करते हुए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का मौका था। इसे 1 रन के साथ स्कोर है 154। 14वें ओवर की चौथी गेंद, ओवर द स्टंप शफीक। इस बार फिर से खेलने गए थे, अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा, लेकिन फिल्टर मौजूद, उन्होंने गेंद को फिर वाइड बॉल का इशारा। तो इस मीन के 2 एक्स्ट्रा के रन मिलते हुए और सोने पर सुहागा के एक्स्ट्रा के 2 रन के साथ स्कोर में 2 रन का इजाफा स्कोर बढ़ता हुआ 156। 14वें ओवर की खेल इस वक्त जारी है। ओवर द स्टंप सुहेल अख्तर के लिए, और अब की बार सुहेल अख्तर ने कहा बहुत हो गया मेरे भाई। पीछे डाली हुई गेंद को बहुत ही जबरदस्त और मजबूत हाथों की मदद से मिड ऑफ द बैट खेलते हुए मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए पहला छक्का सुहेल अख्तर के बल्ले से आज के मैच का। यकीनन बहुत ही शानदार स्ट्रोक, पीछे डाली थी, बैकफुट पे जाके बॉल को बहुत ही मजबूत पावर यूज करते हुए मिडिल ऑफ द बैट खेलते हुए 6 रनों के लिए एक बार फिर से। और अब की बार बहुत ही करारा पंच, लेकिन उतना ही शानदार कैच। वहां पर खड़े थे फील्डर, लाजवाब कैच करते हुए गौहर ने बहुत ही शानदार कैच लिया। और मैं बताता चलो, पहले मैच में भी अब की बार लॉन्ग ऑफ की पोजीशन पर कैच आउट हुए, पहले मैच में लॉन्ग ऑन की पोजीशन पर इनका कैच लिया गया था। और दोनों शॉट्स जो थे वो ऑलमोस्ट सेम शॉट थे, रॉकेट शॉट इसको कहा जाता है, और सीधा तीर की तरह जाता है। लेकिन अब की बार गौहर की तारीफ बनती है, यकीनन बहुत ही तेज गेंद को उन्होंने रोका है। और रोका क्या है, सुहेल अख्तर द लेजेंड ऑफ लाहौर कलंदर, द लेजेंड ऑफ हरीपुर को वापस चलता किया। और अब जाके वो पवेलियन पहुंच चुके हैं नए आने वाले बल्लेबाज शहरियार। इस इनिंग की 7 गेंदों का खेल बाकी रह गया है। नए आने वाले बल्लेबाज शहरियार 19 नंबर की शर्ट में मलबूस स्ट्राइक लेंगे। आज के एक और कामयाब गेंदबाज शफीक जिन्होंने सुहेल अख्तर द लेजेंड ऑफ लाहौर कलंदर को आउट किया। ओवर द स्टंप इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर अच्छी गेंद, तेज गेंदों से खेलने में कामयाब रहे। सीधे बल्ले के साथ सामने खड़े थे शाहजी, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का मौका था 1, और इस 1 रन की वजह से स्कोर में 1 रन का इजाफा। 14 ओवर के बाद स्कोर है
163, 163, 4 विकेट के नुकसान पे। और आखिरी आउट होने वाले बल्लेबाज सुहेल अख्तर, इस टीम के सबसे बड़ा नाम सुहेल अख्तर आउट होकर पिछले ओवर की 5वीं गेंद पर अपनी विकेट गंवा बैठे। और जल्दी करनी होगी क्योंकि मौसम आहिस्ता आहिस्ता कभी साफ कभी, और इकराम थोड़े से परेशान नजर आते हुए। देखना पड़ेगा यहां से 163 15 ओवर में, और अब मजीद कितने रन जोड़ पाती है शहरियार और अमजद वकास की जोड़ी। ये भी इंतहाई अहमियत के हामिल है क्योंकि 6 गेंदें इस इनिंग की रह गई है। और अब आबिद जॉन्टी को गेंदबाजी के बुला लिया है, हेलमेट मंगवाया है यहाँ पर शहरियार ने। जानते हैं कि आबिद जॉन्टी के पास पेस जरूर है, और यकीनन अगर 10 से 12 रन इस ओवर से जुड़ते हैं तो 170 175 काफी बड़ा टोटल है 15 ओवर्स में। तो पहली इनिंग की आखिरी ओवर के लिए आबिद जॉन्टी है गेंदबाज, उनका सामना करेंगे शहरियार फ्रॉम अजमेर। पहली गेंद ओवर द स्टंप तेज होते हुए, और अच्छी गेंद चेंज ऑफ पेस लेग स्टंप से बाहर, और अंपायर का इशारा कि वाइड बॉल, और इस वाइड की वजह से स्कोर में एक इजाफा। स्कोर बढ़ता हुआ 164, 4 विकेट के नुकसान पे 163। आखिरी आउट होने वाले बल्लेबाज सुहेल अख्तर जो कि 30 रन बनाने के बाद आउट हुए। और अब की बार ये अच्छी गेंद उसे खेलने में जरूर कामयाब रहे। रन आउट हो जाएंगे शहरियार, और यकीनन अंपायर का इशारा कि ये रन आउट। बड़ी शानदार फील्डिंग वहां पर शफीक की जानिब से, कवर की पोजीशन पर खड़े थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 24 गेंदों पर 34 रन बनाने में कामयाब रहे सुहेल अख्तर, द लेजेंड ऑफ लाहौर का। आबिद जॉन्टी एक बार फिर से, और आपकी बार यहां पर लॉन्च किया है, फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश में, और यकीनन एक बड़ा ही शानदार कैच लिया है। और अमजद वकास की इनिंग का खात्मा। एक के बाद दूसरी विकेट गिरती हुई, पहले सुहेल अख्तर, उसके बाद शहरियार रन आउट हुए। और अब की बार अमजद वकास मिड विकेट की पोजीशन पर खेलने जरूर गए थे, और लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीचों बीच वहां जाकर तोफेल ने उनका बड़ा शानदार कैच लिया। जमून सुमरा क्राउड दे तो रिक्वेस्ट है बड़ा सीपेक पर मके नहीं था बार बार अगोरी दरखास्त कही नो मंग तुम बदखकार तासो भी बदखकार तास गुजारिश थे जगह ग्राउंड तरह दुमरा गट ग्राउंड दे उस्ताद द पारा दा दुमरा इंतजामात शवी दियो तो दुमरा बार न प्लेयर्स रागिस्ते की दा की दंदर आजे नजदीन है और गोरे डेरा मजबा की मेहरबानी। तो नए आने वाले बल्लेबाज हसनात सामना करेंगे।
168 6 विकेटें गिर चुकी है यहाँ पर देशान टाइगर की। देखना पड़ेगा यहाँ से मजीद कितने रन जोड़ने में कामयाब रहती है देशान टाइगर की टीम। और ये जोड़ी जो इस वक्त हसनात और अब्दुल सलाम की जोड़ी है, अपनी टीम के लिए कितने रन मजीद जोड़ती है आप लोगों को बताना चलो। 15 ओवर्स पर आज का ये मैच मुश्तमिल है। पहले इनिंग की आखिरी 3 गेंदे आई थिंक सो के रह गई है। निसार लाला केएसएल के चेयरमैन और उनके पूरी टीम आज बहुत ही मेहनत करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हर चीज में मसला दरपेश आ रहा है आज, क्योंकि बारिश का मौसम है। आबे चांटी पहली बार हसनात के लिए अच्छी गेंद, और यहाँ से मैं आपको बताता चलूं अपील यहाँ पर हुई है, हसनात को वापस जाना पड़ेगा। अंपायर का इशारा के आउट, यकीनी तौर पर 7वां नुकसान। और मैं ये बात करने ही वाला था कि हसनात ने सेमीफाइनल मुकाबले में आबिद को 2 छक्के जड़े थे। इसी चीज को देखते हुए हाजी इशरत ने इनको भेजा था बल्लेबाजी के लिए, लेकिन आज आबिद का पल्ला भारी और आबिद ये जो कंपटीशन है वो जीत चुकी। और एक और चीज, आबिद जॉन्टी अब हैट्रिक पे आ गए हैं। क्या वो केएसएल के पहली हैट्रिक करने वाले गेंदबाज बन जाएंगे या नहीं, देखना पड़ेगा। हेलो 168 रन हो चुके हैं अब तक। कटे खान यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा, इमरान खान की शर्ट पहने हुए 804 नंबर कैदी यकीनन इमरान खान से साथ मोहब्बतों का इजहार करते हुए कटे खान क्यों गुस्सा हो गए हैं पता नहीं, अब आगे पता चलेगा। और नए आने वाले बल्लेबाज फहद पीरजाई, देखना पड़ेगा कि आखिरी 2 गेंदों पर अपनी टीम के लिए कितना टोटल बनाने में कामयाब रहते हैं। आबे चांटी हैट्रिक बॉल और कोई फील्डिंग में तब्दीली नहीं करना चाहते इकराम, जानते हैं कि यहाँ पर हैट्रिक से ज्यादा एक रन कीमती है। और शफीक को तोड़ा के बुला लिया है ओवर द स्टंप। आबे चांटी फहद के लिए FK 47 की शॉट में मलबूस स्लोवंती यकीनन अच्छी गेंद डालने में कामयाब रहे, लेकिन बाई की सूरत में रन रोकने से नाकाम रही पाक शाहीन की टीम। 169 इस ओवर की आई थिंक आखिरी गेंद, इस इनिंग की आखिरी गेंद। और अंपायर्स को भी रिक्वेस्ट की जाती है और क्राउड को भी रिक्वेस्ट की जाती है कि बाहर ग्राउंड के अंदर आने की कोशिश ना करें, और अंपायर जितना कम टाइम देंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। इसी बीच और इस बार खेलने में कामयाब रहे, 1 बाउंस फील्डर के पास जाती हुई देखना पड़ेगा। शानदार फील्डिंग का मुजाहिरा, वहां पर रन आउट हो जाएंगे। सीधी हिट लगने का इंतजार कर रहे थे आबिद जॉन्टी, लेकिन आबिद जॉन्टी ने यहां पर रन आउट मिस कर दिया है। और इन 2 रनों की मदद से 171 रन बनाने में कामयाब रही यहां पर देशान टाइगर की टीम 15 ओवर्स में, और 172 रन बनाने होंगे पाक शाहीन को यह मुकाबला जीतने के लिए 15 ओवर्स में। अब देखना पड़ेगा कि आज कौन सी टीम। और एक और चीज, 7 मिनट का टाइम दिया गया है, 7 मिनट। इनिंग ब्रेक जो है वो आज 7 मिनट की होगी। और यकीनन अंपायर से भी रिक्वेस्ट है कि आप बाहर ना ही आए तो ज्यादा बेहतर है। और हमने सईद भी आज